خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ٹی آر ایس ایم ایل سی انتخابات میں مسلسل دوسری مرتبہ بحیثیت ٹی آر ایس امیدوار کلبہ کٹھلا کے کویتا کا اعلان، ٹی آر ایس خیمے میں خوشی کی لہر۔ نظام آباد کی سابق میئر دھرمپوری سنجے کی یوم پیدائش کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی بین مذاہب و غریب و متعلق لڑکیوں کی شادی کا اہتمام، منر کا پھول سنگم میں کامیابی کے ساتھ انعقاد۔ دھان کی اہمیت و خریداری سے متعلق پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے پی ایس سی ایس چیئرمین کو کسانوں سے متعلق مسائل کے تعلق سے توجہ کروائی۔ نیپال کی پوکھرا میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی کبڈی کے مقابلے میں بھیمگل منڈل کے نتن و راحت نگر سے تعلق رکھنے والے گوگلو سوجنیا کا انتخاب اس ماہ کی 26 تا 30 تک نیپال کے پوکھرا میں بین الاقوامی کبڈی کا مقابلہ۔ آرمور شہر میں عنقریب آغاز عمل میں لائے جانے والے ایم ایل اے جیون انا مفت غذا کی فراہمی سے متعلق انتظامات کا سرپور رکن اسمبلی و شہری لنگم پلی رکن اسمبلی نے کیا جائزہ۔ جہیز کی شادیوں میں ہرگز شرکت نہیں کرتے، نظام آباد میں خواتین نے ہاتھ اٹھا کر کیا تقریری مقابلہ، ڈاکٹر علی خان فلکی کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دختر چیف منسٹر کے کویتا کو کئی اہم عہدوں پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل، ایم ایل سی انتخابات میں ٹی آر ایس سے دوسری مرتبہ کے کویتا امیدوار کامیابی یقینی۔ قانون ساز کونسل مقامی ادارے کے رکن کے انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے 7ویں روز ایک بھی پرچہ نامزدگی داخل نہیں کی گئی، جبکہ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی کل آخری تاریخ ہے۔ واضح ہے کہ مقامی درجات قانون ساز کونسل کی رکن کے کویتا کی میعاد 4 جنوری 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس سے قبل دسمبر میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ 24 نومبر کے روز جانچ پڑتال اور دستبرداری 26 نومبر اور رائے دہی 10 دسمبر کو منعقد کیا جا رہا ہے اور رائے شماری 14 دسمبر کے روز کی جائے گی۔ مقامی درجات کے لیے جملہ 820 رائے دہندے ہیں۔ گزشتہ منعقدہ انتخابات میں ٹی آر ایس کو 728 ووٹ حاصل ہوئے تھے اور بی جے پی کو 56 ووٹ حاصل ہوئے تھے اور کانگریس کو 29 ووٹ حاصل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کی جانب سے مقابلے کے لیے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ بی جے پی کی جانب سے واضح طور پر انتخابات سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کانگریس کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ مقامی درجات سے کانگریس کی جانب سے 140 اراکین کا انتخاب ہوا تھا، لیکن ان میں سے کئی افراد کانگریس سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد کانگریس کے 44 اراکین رہ گئے تھے۔ گزشتہ انتخابات میں کانگریس کو صرف 29 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ سابق تجربے کو نظر میں رکھتے ہوئے کانگریس بھی مقابلے سے گریز کر رہی ہے۔
सदर जिले कांग्रेस से इस बारे में दरियाफ्त करने पर बताया कि पार्टी की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। हो सकता है आज रात इस खुसूस में फैसला करने के इम्कानात थे, जबकि टीआरएस की जानिब मौजूदा एमएलसी के कविता इस मरतबा मुकामी दराजात के लिए मुकाबला कर रही हैं और ये कल 10 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। अगर कांग्रेस बीजेपी मुकाबला न करने की सूरत में के कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात थे और इस बात की भी अफवाहें चल रही हैं कि टीआरएस को जिले में मुस्तहकिम करने के लिए के कविता को काबीना में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि रियासती काबीना में भी रद्दोबदल के इम्कानात थे। डॉक्टर चीफ मिनिस्टर के कविता को कई अहम ओहदों पर फाइज होने का एजाज हासिल है। एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी यकीनी मानी जा रही है। आर्मर रकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के तहत पीएसीएस चेयरमैन को धान की अहमियत व खरीदारी के मुतालिक किसानों के मसाइल पर तवज्जो करवाई। आर्मर हलके के पीएसीएस चेयरमैन के साथ पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल का इजलास मुनाकिद करते हुए धान की अहमियत व खरीदारी के मुतालिक पीएसीएस चेयरमैन को किसानों के मसाइल के मुतालिक तवज्जो दिलवाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने के लिए खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। మండల పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్పూర్ ఎంపీటీసీ ఆర్మూర్ జెడ్పీటీసీ సంతోష్ గారు, అదేవిధంగా జెడ్పీటీసీ నందిపేట్ యమునా ముత్యం గారు, భరత్ గారు, అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ సురేష్ గారు, వీరందరితో చర్చించిన మరి ఇప్పటికే దాదాపుగా వడ్లు కొనుగోలు దాదాపుగా జరుగుతూ ఉన్నది। మరి దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు పీఎస్సీ చైర్మన్ మరియు అధికారులతో మాట్లాడుతున్నా। అధికారులతో ఏడీఆర్ ఉన్నారు లైన్ లో। ज़रे खवारिन को तंजीक किसानों की बड़ी कामयाबी, महलू किसानों को 3 लाख की इमदाद, मरकज 25 लाख एक्सग्रेशिया दे, अकल तरीन इमदादी कीमत के लिए कानून साजी और मुकदमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 ज़रे खवारिन को वापस लेने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले को किसानों की एक बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि इसी खवारिन की वापसी पर ही हुकूमत को इत्तेफाक नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर राव ने किसान एहतिजाज में जिंदगियां कुर्बान करने वाले 700 से ज्यादा किसानों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फीकस 3 लाख रुपए इमदाद फराहम करने का ऐलान किया और मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इन किसानों के अफराद खानदान को फीकस 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया अदा करे। चीफ मिनिस्टर ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलानात किए। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को इमदाद की फराहमी के लिए 22.5 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे जो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से खवानीन को वापस लेना दरअसल किसानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पर वो इन्हें मुबारकबाद देते हैं। केसीआर ने कहा कि वजीर आजम ने इन खवानीन पर माजरत ख्वाही भी की है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है क्योंकि इससे किसानों की तकालीफ का मदावा नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि किसानों के खिलाफ एहतजाज के दौरान जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए इनसे फौरी दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। किसानों से इजहार इगानियत करने वालों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए इनसे भी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली जाए, यह इंसाफ का तकाजा है। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को अकल तरीन इमदादी कीमत अदा करने के लिए भी पार्लियामेंट में कानून साजी करे। ये किसानों का एक बुनियादी मुतालबा है। इन्होंने ऐलान किया कि वो कल इतवार 21 नवंबर को दिल्ली रवाना होंगे ताकि रियासत से धान की खरीदी पर मरकज से नुमाइंदगी कर सके। जरूरी हो तो वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अपने मुतालबात से इन्हें वाकिफ करवाएंगे। जहेज की शादियों में हरगिज शिरकत नहीं करेंगे। निजामाबाद में खवातीन ने हाथ उठाकर किया है तुलबात का एक दिलचस्प तकरीरी मुकाबला। डॉक्टर अलीम खान फल्की की शिरकत। 21 नवंबर 2021 बरोज इतवार को अल फुरकान फाउंडेशन निजामाबाद और
सोशियो फॉर्मेल सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद किए गए इस तकरीरी मुकाबले में 85 लड़कियों ने हिस्सा लिया और इंग्लिश और उर्दू में अपनी शानदार तकारीर के जरिए जहेज और बारात के खानों की वजह से होने वाली बर्बादियों के खिलाफ आवाज उठाई। सफा फातिमा इनाम अव्वल, मैमुना फातिमा इनाम दुव्वम और मानाज फातिमा इनाम सुव्वम की हकदार करार पाई। इनके साथ साथ तमाम तुलबा को भी मोमेंटो और कैश प्राइज पेश किए गए। क्लासिक गार्डन में जनाब निसार अहमद साहब की सरपरस्ती में होने वाले इस प्रोग्राम में, जिसमें तकरीबन 300 मर्द व खवातीन ने शिरकत की, डॉक्टर अलीम खान फल्की की कॉल पर तमाम मर्द व खवातीन ने हाथ उठाकर ये अहद किया कि आज के बाद से किसी ऐसी शादी का दावतनामा हरगिज कबूल नहीं करेंगे जिसमें शरीयत के खिलाफ एक भी रस्म हो, जैसे मंगनी और बारात का खाना, जहेज जोड़े की रकम वगैरह। फैयाज अहमद डायरेक्टर अल फुरकान फाउंडेशन और अब्दुल बारी हुसैनी सेक्रेटरी सोशियो रिफॉर्मल सोसाइटी इस पूरी तहरीक के मुंतजिम कार थे। मेहमान खुसूसी में जनाब लतीफुद्दीन खान साहब, साबिक सदर जमीयत अहले हदीस मोहम्मद फरमान, डायरेक्टर सहारा फाउंडेशन करीमनगर और ताजुद्दीन अंसारी रुकन सोशियो फॉर्मेल सोसाइटी हैदराबाद शामिल थे। स्मार्ट पुलिसिंग में बीजेपी बरसर इख्तिदार रियासती सरफहरिस्त तेलंगाना पुलिस को दूसरा मुकाम, इंडियन पुलिस फाउंडेशन में रिपोर्ट की जाए। मुल्क में स्मार्ट पुलिसिंग के नारे को कामयाब बनाने में गैर बीजेपी रियासतों की पुलिस ने सरफहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया। स्मार्ट पुलिसिंग के उसूलों पर अमलावरी, जवाबदेही, शफाफियत, गैर जानिबदारी और बदउनवानियों से पाक पुलिस निज़ाम का वज़ीर आज़म मोदी ने साल 2014 में नारा बुलंद किया था। गुवाहाटी में इस वक्त मुनक़दा DGPs के कॉन्फ्रेंस में चंद निशाना मुकर्रर करते हुए 11 नुकाती फार्मूला जारी किया गया था। इन नुकात और उसूलों और फवायद पर IPF को दी गई थी। इस इदारे की जानिब से जामा सर्वे के बाद एक रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें रियासत तेलंगाना की पुलिस को दूसरा मुकाम और रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस को पहला मुकाम हासिल हुआ है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने, जिसकी सदारत साबिक DGP उत्तर प्रदेश प्रकाश सिंह कर रहे हैं, इन्होंने गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट जारी की। जामा सर्वे में स्मार्ट पुलिसिंग के 11 नुकात पर अमलावरी का जायजा लिया गया। इस सर्वे में कुल 1,61,192 नमूने हासिल किए गए और चंद रियासतों में जरूरत के लिहाज से गैर इत्मीनान बख्श नताइज के सबब इन रियासतों का तस्करा नहीं किया गया। स्मार्ट पुलिसिंग फवायद पर अमलावरी के 11 नुकात में तेलंगाना पुलिस ने 5 पर सरफहरिस्त और 5 पर दूसरा मुकाम हासिल किया, जबकि 1 नुकात पर तीसरा मुकाम तेलंगाना पुलिस को हासिल हुआ। तेलंगाना पुलिस हसास मसाइल के एक्सवी में 8.27 निशानात, अवाम से खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात में 8.14, पुलिस के रद्द-ए-अमल और 8.29, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में 8.17, फ्रेंडली पुलिसिंग में 8.8, स्मार्ट पुलिसिंग में 8.10, गैर जानिबदारी में 7.97, जवाबदेही में 7.95, पुलिस पर अवामी एतमाद में 8.7, बदउनवानी और रिश्वत से पाक खिदमत में 7.78 निशानात हासिल किए। तेलंगाना के मुकाबिल आंध्र प्रदेश पुलिस जवाबदेही, स्मार्ट पुलिसिंग, अवाम पर पुलिस का एतमाद जैसे नुकात में तेलंगाना पुलिस से आगे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने और स्मार्ट पुलिसिंग पर अमलावरी में दोनों रियासतों की पुलिस एक दूसरे पर सबकत की दौड़ में जुड़ गई है, जबकि इन दोनों रियासतों में गैर बीजेपी हुकूमतें पाई जाती है। भीमगल मंडल मौजे बाबापुर के सरपंच व नायब सरपंच अतीक ने मौजे के साकिन नितिन का इंटरनेशनल कबड्डी मुकाबले में मुंतखब होने पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। भीमगल मंडल मौजे बाबापुर की सरपंच व नायब सरपंच अतीक ने मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले नितिन का बैनुल-अक़वामी कबड्डी में मुंतखब होने पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तुलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तुलबा में मौजूद मुख्तलिफ पोशीदा सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन करने का इजहार करते कहा कि आज बाबापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नितिन का इंटरनेशनल कबड्डी में इंतखाब अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। ఆడ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది, ఆడ నుంచి వెళ్ళి ఆడ సెలెక్ట్ అయితే మళ్ళా ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చింది సెలెక్షన్, ఆడ కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది। ఇప్పుడు నేపాల్కి సెలెక్ట్ అయినా, ఇండియా నుంచి వెళ్ళి ఇంత మనం సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్।
नवी पेट मंडल के मुकाम पर असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर नारायण ने पंचायत राज कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक रामपुर ग्राम पंचायत के अहाते में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। नवी पेट मंडल के मुकाम पर असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर नारायण ने पंचायत राज कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक रामपुर ग्राम पंचायत के अहाते में मुनक़िद होने वाले तरक्याती कामों की तनक़ीद अमल में लाते हुए देहात में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी, पले प्रकृति जंगलात, कंपोजिट, रेवेन्यू, कम्युनिटी पौधों के अलावा आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल का जायजा लेकर खुशी का इजहार किया और इसी तरह से मौजे में जारी तरक्याती कामों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले सरपंच रूपा कल्पना व सेक्रेटरी राजकुमार की खिदमात को काबिल सिताइश करार दिया। सरपंच గారు కూడా చెప్పాను మొత్తము గ్రామంలోని అన్ని పనులు సెక్రటరీ గారు మరి సర్పంచ్ గారు చూసుకోమని చెప్పాను। మీరే కీ పాత్ర మీదే గ్రామంలో మొత్తం పరిశుభ్రత కానీ మొక్కలను పెంచడంలో కానీ మీకే మొత్తం అన్ని పవర్స్ ఇచ్చారు। పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో కూడా మీకు ఇచ్చారు కాబట్టి గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచమని చెప్తున్నాను। మరియు తర్వాత ప్లాంటేషన్ మొక్కలను కూడా శుభ్రంగా अकामती स्कूल की 13 तलबात कोरोना से मुतासिर, खम्मा में वाक़ असातिज़ा और सरपरस्तों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल अगरचे मजमूई तौर पर काबू में है, लेकिन अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स में तलबा कोरोना से मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। खम्मम वायरा में लड़कियों के अकामती स्कूल में कोरोना केसेस से तशवीश की लहर दौड़ गई। स्कूल की 13 तलबात में पॉजिटिव पाया गया, जिससे तलबा व असातिज़ा में दहशत का माहौल देखा गया। बताया जाता है कि महकमे सेहत के अहदेदारों की खुसूसी टीम ने तलबात के मुआयने के इंतजामात किए हैं। मुतासरा तलबात को इलाज के लिए आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि तलबात में कोरोना अलामात पर तमाम का टेस्ट किया गया, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए। मुतासरा लड़कियों को स्कूल के एक अलहदा गोशे में मुंतकिल करके आइसोलेशन में इलाज शुरू किया गया। मुतासरा तलबात के वालिदैन को इत्तला दे दी गई। बताया जाता है कि हकाम ने बाकी तलबात के अलावा असातिज़ा और दीगर स्टाफ के टेस्ट के इंतजामात किए हैं। इस वाक़े के बाद से कई सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर मालूमात हासिल की। इस वाक़े से ज़िले के दीगर अकामती स्कूलों और हॉस्टल के तलबा में बेचैनी पाई जाती है और हकाम दीगर स्कूलों में भी कोरोना टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। वाजरे के ज़िले खम्मा में इब्तिदा से ही कोरोना केसेस में आगे रहा है। इलारेडी में मलून वसीम रजवी के खिलाफ इलारेडी के मुसलमानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सदर मसाजिद मोहम्मद गयासुद्दीन की क़यादत में मलून वसीम रजवी के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त CI मिस्टर राजशेखर को पेश की और वसीम रजवी जो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आहनत नामूस रिसालत में गुस्ताखी पर मुश्तमिल किताब तहरीर करने पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि रजवी जो हिंदी ज़बान में किताब तहरीर की है जिसमें झूठ नाजिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करते हुए कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। CI इलारेडी ने तयक़ुन दिया कि वो आला अहदेदारान से मशावरत करते हुए कार्रवाई करेंगे। इस वफद में सदर मसाजिद शेख गयासुद्दीन, सखावत अली, सैयद खलीलुल्लाह, अजीज अहमद, अब्दुल रज़ाक, सैयद नजीब, सैयद गफ्फार, सैयद रफ़ीकुल्लाह, जुनैद और दीगर मौजूद थे। उसके बाद सदानंद के साथ मिलके जो है सो मुसलसल गुस्ताखियाँ करता रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रिसेंटली एक हफ्ता पहले वो दीन इस्लाम को छोड़ के हिंदू मत में गया, सदानंद के साथ मंदिर में पूजा किया। उसके बाद जो सदानंद के ग्रुप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के खिलाफ जो है सो जहर अफसानी करा, ख़ास तौर पे ताअद्दुद अज़वाज यानी कि एक से ज़ायद बीवियों से मुताल्लिक़। इसका मतलब ये है कि वो जो चैप्टर्स RSS के हिंदुत्व के वादियों के पास बने हुए थे, उसी के ऊपर जो है सोन अपना बयान दिया। उसका ज़ाती तौर पे कोई इल्म, कोई मालूमात नहीं है, उसकी कोई रिसर्च नहीं है। जैसा उसको बैकअप किया जा रहा था पीछे से हिंदूवादियों की तरफ से, उसी को जो है सामने ला रहा था। उसके दीन छोड़ने से किसी मुसलमान को निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साबिक़ा मेयर जनाब D संजय साहब की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बैन मज़ाहिब गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी का एहतमाम मुनरकापुर संगम में किया गया।
शहर निजामाबाद में आज बतारीख 22 नवंबर 2021 बरोज़ पीर को साबिक व फर्स्ट निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर जनाब डी संजय साहब की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बैन मज़ाहिब गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी का एहतमाम मुनरकपुर संगम में किया गया। इस बैन मज़ाहिब शादियों में एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल था। इस तकरीब में यौम पैदाइश व बैन मज़ाहिब शादियों में ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के अराकीन को मदऊ किया गया। असम्बली काबिल जिक्र जनाब सूफी यूनुस मिर्जा कादरी अल चिश्ती जामे सलासिल क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना अलैया हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर जनाब सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी कादरी अल चिश्ती क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना अलैया हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी जनाब सूफी महमूद दाऊद अली शाह कादरी निजामाबाद मोतमिद आस्ताना अलैया ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन नमाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी जामा सलासिल क़िबला जनाब सैयद दाऊद अली शत्तारी अल कादरी क़िबला नगराम सज्जदा नशीन आस्ताना अलैया हज़रत सूफी शाह मोहम्मद बरहानुद्दीन शत्तारी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह खदीम ईदगाह निजामाबाद जनाब सूफी सैयद मुजाहिद अली शाह कादरी जामा सलासिल सज्जदा नशीन व गद्दी नशीन खानखा मुर्तजिया व रहमानिया निजामाबाद के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के अराकीन व सियासी समाज व सहाफती हज़ात ने शिरकत की है। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा कौंसिल के अराकीन ने नौशाह शेख सुल्तान फरजंद शेख सरवर साहब और दुल्हन अजीजी मुस्कान बेगम सुलेमान बिन शेख जाकिर हुसैन साहब मरहूम साकिन धर्मपुरी निजामाबाद की गुलपोशी की और साबिक मेयर जनाब डी संजय साहब को अपनी दुआओं से नवाजा और संजय साहब को गुलदस्ता पेश किया। गुजरे 15 साल से जो शादियां कराते आ रहे हैं, इज्तिमाई शादी बोलते हैं ना, मास मैरिजेस जो करते आए हैं, आज मेरे बर्थडे के दिन कुल मिला के 16 शादियाँ करें हम। इसको जो और लड़का लड़कियों को सबको आशीर्वाद देने के लिए जो भी बड़े यूथ और ज़्यादा नंबर में जो आए लेडीज़, उन सबको भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 25 नवंबर से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग क्लासेस का आगाज। रियासत में 25 नवंबर से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग क्लासेस का आगाज अमल में लाए जाने के सिलसिले में अनकरीब शेड्यूल जारी किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन चेयरमैन आर लिम्बाद्री ने बताया कि एमसेट के 2 मरहलों में काउंसलिंग अंजाम दी गई और तुलबा को मुख्तलिफ कॉलेजेस में नशिस्तें अलॉट की गई। तुलबा जुमेरात तक मुतालिका कॉलेजेस पर रिपोर्ट करना होगा। पहले मरहले में नशिस्तें हासिल करने वालों में से तकरीबन 3500 तुलबा ने कौमी कॉलेजों और दीगर खानगी कॉलेजों और मारूफ यूनिवर्सिटियों में दाखिल हासिल किया है। दूसरे मरहले में नशिस्तें बाकी रह जाने पर इस माह के 21 नवंबर के बाद खुसूसी काउंसलिंग मुनाकिद की जाएगी। इसके बाद नशिस्तों की तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इंजीनियरिंग में कन्वीनर कोटे के तहत 79,790 नशिस्तें और दूसरे मरहले की काउंसलिंग के जरिए 73,428 नशिस्तें मुख्तस की गयी। मजीद 19,797 नशिस्तें बाकी इस माह के 21 से इन तुलबा के लिए खुसूसी काउंसलिंग की जाएगी जो दाखिला हासिल करने से महरूम रहे। 22 नवंबर तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और 25 नवंबर से बाकायदा क्लासेस का आगाज हो जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशनल काउंसिल ने इस माह के आखिर तक इंजीनियरिंग के पहले साल की क्लासेस शुरू करने की तजवीज दी है। इसके पेश नजर खानगी कॉलेजेस की इंतजामिया कोटे की नशिस्तें पर भर्ती कर रहे हैं। रियासत में मजमूई तौर पर 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद है, जिनमें खानगी कॉलेजेस की तादाद 156 बताई गई है। टॉप 10 कॉलेजेस में पहले ही नशिस्तें पुर हो चुकी है। इस मरतबा कंप्यूटर साइंस नए कोर्सेज की मंजूरी दी गई, जिसकी वजह से नशिस्तों की तादाद में इजाफा हुआ। सिविल और मैकेनिकल नशिस्तों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद 5 लाख रुपए करने की तजवीज। चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों से मशावरत। मौजूदा हद 2 लाख से इलाज में दुश्वारियां।
तेलंगाना में गरीब अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत ने आरोग्य श्री के तहत इलाज की हद में इजाफे का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक आरोग्य श्री के तहत फिलवक़्त 2 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त हासिल किया जा सकता है। हुकूमत इसे 5 लाख रुपए इजाफा करने का मंसूबा रखती है ताकि गरीब अवाम को कई अमराज का मुफ्त इलाज यकीनी हो सके। रियासत में मुख्तलिफ गोशों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलाज की हद में इजाफा किया जाए, क्योंकि खानगी दवाखानों में अवाम को संगीन अमराज के मुकम्मल इलाज में 2 लाख की हद काफी नहीं है। बताया जाता है कि हुकूमत नेटवर्क हॉस्पिटल से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर रही है ताकि इनकी तजावीज़ को पेश नजर रखते हुए फैसला किया जा सके। हालिया बरसों में किसी भी मर्ज के इलाज के लिए खर्च में काफी इजाफा हो चुका है, जिसके नतीजे में गरीब अवाम कर्ज हासिल करने पर मजबूर है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इलाज की हद में इजाफे के मसले पर विज़रा और ओहदेदारों से बातचीत की है। इस फैसले के नतीजे में 1 साल में अगर ये खानदान के 2 अफराद को इलाज की जरूरत पड़े तो इन्हें स्कीम से फायदा होगा। आरोग्य श्री के तहत फिलवक़्त 120 मुख्तलिफ इलाज की सहूलत है, जबकि मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 16,068 मुख्तलिफ इलाज किए जाते हैं। हुकूमत ने अवाम के दबाव के तहत जारी साल मरकजी स्कीम को तेलंगाना में इख्तियार करने का फैसला किया है। दोनों स्कीमात पर बैक वक्त अमल किया जा रहा है। बताया जाता है कि आरोग्य श्री के तहत 79 लाख अफराद, जबकि मरकजी स्कीम के तहत 30 लाख खानदानों का अहाता किया गया। आरोग्य श्री स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत को सबसे बड़ी रुकावट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से है, जो बखराजात की अदम अदायगी का बहाना बनाकर आरोग्य श्री मरीजों को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत नेटवर्क हॉस्पिटल्स को आरोग्य श्री के बखराजात की जुराई में ताख़िर कर रही है। हॉस्पिटल्स का कहना है कि अगरचे इलाज की हद में इजाफे से अवाम को फायदा होगा, लेकिन हुकूमत को बखराजात बर वक्त जारी करने चाहिए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को 764 क्यूसेक इनफ्लो जारी होने का एई रवि ने किया इजहार। एई रवि ने कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट को 764 क्यूसेक इनफ्लो जारी है और काकतिया कैनाल को 50 मिशन भगीरथा पीने के पानी के लिए 152 क्यूसेक आबे ज़खायर को इस्तेमाल करने का इजहार किया और दीगर बारह मुकामात से प्रोजेक्ट को इस सीजन में 676.011 TMC ज़खायर दाखिल हुए हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091.00 फीट 90.313 TMC के होने पर पहर इतवार को मुकम्मल सत्याब महफूज होने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी एडिशनल कलेक्टर माधवर राव की सदारत में मुनक्किदा प्रजावानी का कामयाब इनेकाद। जिले कामारेड्डी एडिशनल कलेक्टर माधव राव की सदारत में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से शिकायतें हासिल करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को फिलफुर मसाइल के हल करने के लिए हिदायत जारी की गई और इसी तरह से रेवेन्यू से 40 ग्राम पंचायत से मुताल्लिक़ 16 म्यूनसिपल से टिप और वार्ड से मुताल्लिक़ 2 ज़राअत तालीम महकमे जंगलात मिशन भगीरथा रोजगार तमानियत स्कीम मवेशी इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ शिकायतों को हासिल करने का इजहार किया। आरमूर शहर में अनकरीब आगाज अमल में लाए जाने वाले जीवनन्ना मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी के इंतजामात का सिरपुर रुकन असम्बली व शहरी लिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ने लिया जायजा। आरमूर शहर में अनकरीब आगाज अमल में लाए जाने वाले जीवनन्ना मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी से मुताल्लिक़ इंतजामात का सिरपुर रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा व श्री लिंगमपल्ली के MLA अरकेपुरी गांधी ने जायजा लिया। ఇది కట్టలేదు, ఇది కూడా మనకే డిస్మెంటల్ చేయాలి రిమూవింగ్ తీసుకుంటాము. వెనుక కూడా ఒక 100 by 100 3069 అన్న 31 ఇప్పుడు మన 120 సార్. ఈ 69 ఇదిగో అన్న, ఈ 69 మళ్ళీ ఇది 120 రైట్ 120 by 100 సీసీ రోడ్ వరకు. ఓకే ఇగో కరెక్ట్ ఇగో ఓకే. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। TRS MLC इंतखाबात में मुसलसल दूसरी मरतबा बहैसियत TRS उम्मीदवार कलवा कुटला के कविता का ऐलान। TRS खैमे में खुशी की लहर। निजामाबाद की साबिक़ मेयर धर्मपुरी संजय की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बैन मज़ाहिब व गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी का एहतमाम। मुनूर का फूल संगम में कामयाबी के साथ इनेकाद।
धान की अहमियत व खरीदारी से मुतालिक पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने पीएसीएस चेयरमैन को किसानों से मुतालिक मसाइल के ताल्लुक से तवज्जो करवाई। नेपाल की पोखरा में मुनाकिद होने वाले बैनुल-अक़वामी कबड्डी के मुकाबले में भीमगल मंडल के नितिन व राहत नगर से ताल्लुक रखने वाले गोगुलो सौजन्या का इंतखाब इस माह की 26 से 30 तक नेपाल के पोखरा में बैनुल-अक़वामी कबड्डी का मुकाबला। आर्मूर शहर में अनकरीब आगाज अमल में लाए जाने वाले एमएलए जीवन अन्ना मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी से मुतालिक इंतजामात का सिरपुर रुकन असम्बली व शहरी लिंगमपल्ली रुकन असम्बली ने किया जायज़ा। जहेज की शादियों में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। निज़ामाबाद में ख़वातीन हाथ उठाकर किया तहरीरी मुकाबला डॉक्टर अली खान फल्की की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।